اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ امرت رس، تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ پہلی قسط۔ گاڑی بیدر جنکشن سے کافی آگے نکل آئی تھی۔ آخری رات کا چاند دھندلا دھندلا سا نمودار ہوا اور سامنے میدان میں سہمی سہمی سی چاندنی اور ٹھٹکے ٹھٹکے سے سائے ایک دوسرے سے خوف کھا کر پرے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ فضا بڑی اداس اور بڑی خاموش سی تھی۔ بھیم راؤ جھک کر نیچے دوڑتی ہوئی زمین کو گھورنے لگے۔ بیدر کی زمینوں کی سرخی اس مدھم اجالے میں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ کامپاڑے کے ٹیلے کے بعد تو کالی زمین شروع ہو جاتی ہے، مگر شاید ابھی کامپاڑا نہیں آیا۔ دھرتی ماتا کے بھی کتنے رنگ ہیں۔ اندگیری کی پہاڑیوں سے نکلتے ہی دھرتی ماں کی اوڑھنی کا سرخ آنچل گاڑی کی رفتار کے ساتھ لہریں مارتا نظر آ رہا تھا۔ جو لمباڑے کوہیر وغیرہ سے سوار ہوئے تھے، ان کے کپڑوں اور کمبلوں پر بھی سرخ سرخ دھول اٹی ہوئی تھی۔ اور اب کامپاڑا کا ٹیلا بھی گزر گیا اور دھرتی ماتا نے سردی سے بچنے کے لیے کالا کمبل اوڑھ لیا۔ مرہٹواڑا کی کالی زمین کی سوندھی سوندھی مہک اٹھنے لگی اور بھیم راؤ نے ایک گہرا سانس لیا۔ بس اب بھال کی آنے ہی والا ہے۔ کتنے ہی برس گزر گئے کہ وہ بھال کی چھوڑ کر بلدا چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بھیم راؤ سوچ میں پڑ گئے کہ وہ بیتی باتوں کو یاد بھی کریں یا نہیں، لیکن کچھ ان کے بس میں تو تھا نہیں۔ سیاہ مٹی کی مہک نے ان کے ذہن میں سوئی ہوئی بہت سی یادوں کو گدگدا سا دیا تھا۔ باتیں کچھ انوکھی بھی نہیں تھیں، ایک جیسی سی باتیں جو عموماً ہر گھر سے بھاگنے والے کو پیش آتی ہیں۔ کنچا بھی عام لڑکیوں جیسی ایک لڑکی تھی، بس اتنا ہی کچھ ہوا کرتا تھا کہ وہ دودھ انڈیلنے لگتی تو بھیم راؤ کے ہاتھ نامعلوم کیوں لرزتے اور دودھ نیچے گر پڑتا، اور کنچا سر کو پیچھے کی طرف جھٹک کر کہتی، تو کس کام کا ہے رے؟ میاں سے جا کر کہہ دوں گی۔ دیدے کیوں پھاڑتا ہے رے؟ اور پھر کتنے ہی ایسے رے تھے جو دودھ کی کچی دھار کی طرح بھیم راؤ کے کانوں میں اتر جاتے، اور پھر سارے دن یہ رے رے ایک مدھر گیت بن کر ان کے ریشے ریشے میں سما جاتے۔ بھیم راؤ نے شال اپنے کانوں پر سے ہٹائی۔ اب ان کو گاڑی کی چھکا چھک میں رے رے کی مدھر لے سنائی دے رہی تھی۔ رے رے گاڑی الاپتی رہی اور بھیم راؤ کے دل میں بہت سی یادیں ناچ اٹھیں۔ کتنا میٹھا راگ تھا، لیکن کتنا کڑوا بھی۔ اس رے رے کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑا تھا،
कंचा बालक विधवा हुई थी और कैसे हो जाता कि समाज के बंधन तोड़कर वो कंचा को अपनी गिरह में बांध लेते। उन्होंने एक सहपहर में कंचा को अरंडी के खेत में घेर लिया। वो गोबर के ओपले बना रही थी। उन्होंने उसके गोबर भरे हाथों को पकड़ लिया। चल रही, हम यहां से भाग जाएं। कंचा ने बहुत दूर स्टेशन के सिग्नल की तरफ देखा और फिर पलटकर एक नजर पीछे बस्ती पर डाली। फिर कुछ देर तक भीमराव को देखती रही। बोल रही, चलती है कि नहीं? भीमराव ने उसकी कलाई जरा सख्ती से मोड़ते हुए कहा और कंचा की आंखों में आंसू भर आए और उसने एक झटके से अपने हाथ छोड़ा लिए और जमीन पर बैठकर गोबर घंघोलने लगी। अब यहां से चला जा, विदा आता होगा। और जब कंचा ने देखा कि वो उसी तरह खड़े हुए हैं तो वो लपक कर उठी। क्यों रे, जाता क्यों नहीं? कुछ सुनता भी है रे, तू नहीं जाता? और उसने जोर से पैर जमीन पर पटका और एकदम से चीखी, ओ विधवा रे विधवा। भीमराव सटपटा से गए और मेंढ पर से दूसरी तरफ कूद गए। कंचा मेंढ पर दोनों हाथ रखे क़हक़हा मारकर हंसती रही और फिर नामालूम क्यों उसकी आवाज भर्रा गई। आंखें डुबडुबा आईं, हंसी और सिसकियां मिलजुल गईं। भीमराव ने पीठ फेर ली और दूसरे दिन सुबह तक वो फैसला नहीं कर सके कि कंचा रोई क्यों थी और हंसी क्यों। और आखिर तंग आकर वो स्टेशन की तरफ चले गए। भीमराव तेज तेज कदम उठाए चले जा रहे थे कि खट खट की एक मानूस सी आवाज आने लगी। वो लंग के चबूतरे पर बैठ गए। लंगड़ा सालम मटोला अपनी मखसूस खट खट के साथ मस्जिद की तरफ जा रहा था। भीमराव ही क्या, बस्ती के हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सारे लोग मटोले से डरते भी थे और मोहब्बत भी करते थे। वो उसकी भयानक शक्ल से खौफ खाते थे और उसकी प्यारी आवाज पर शीदा थे। लंगड़ा मटोला न जाने कहां से महीना दो महीना में देहातों का चक्कर लगाने अचानक आ जाता और फिर अचानक ही कहीं गायब हो जाता। वो अमूमन पाँव फटने के करीब बस्ती में दाखिल होता और सीधा मस्जिद जाकर अजान कहता। बरस से ये मामूल चला आ रहा था। उसके मुताल्लिक यूं तो बहुत सी अफवाहें थीं, लेकिन उसका सही हाल किसी को मालूम न था। लोग तो सिर्फ उसकी लकड़ी की टांग की खटखट और दिल को बरमा देने वाली अजान से वाकिफ थे। वो ऐसी दर्द भरी लय में अजान देता था कि सारी बस्ती के लोग नींद से चौंक कर अपने अपने बिस्तरों में सकते के आलम में बैठ जाते और जब तक उसकी अजान खत्म नहीं होती सबके ऊपर एक नशा सा छाया रहता। भीमराव मटोले को मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ता देखकर रुक गए। फिर मौका मिले या ना मिले मटोले की आजान सुनकर ही जाना चाहिए। और जब कुछ देर बाद लंगड़े मटोले ने आजान शुरू की तो भीमराव पर एक कैफियत सी तारी हो गई। उनके दिल में रे रे का तार बड़ी जोर से झनझनाने लगा। ये बदसूरत लंगड़ा भी दुखी मालूम होता है। मुझे तो कंचा का दर्द है, मटोले को किसका दर्द है? उनका दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन कोई अंदर से कह रहा था कि मटोले का दुख तुम्हारे दुख से ज्यादा है।
तुम्हारा दुख रूप का दुख है, उसका दुख आत्मा का दुख है। बल्दा में बड़ी रौनक थी। 100 साल की आसिफ जाही हुकूमत के ठंडे साए में जिंदगी कुछ ऐसी बेफिक्री से पैर फैलाए बैठी थी जैसे वो ना तो कहीं से आई है और ना उसे उठकर कहीं जाना है। भीम राव भी वहीं पैर फैलाकर बैठ गए। राघु आचार्य एडवोकेट के मुहर्रिर की हैसियत में भीम राव बड़े इत्मीनान से जिंदगी गुजारने लगे। राघु आचार्य राजा किशन प्रसाद के कानूनी मुशीर थे और इस एक ताल्लुक से उनको सब कुछ मिल जाता था। चूंकि तबअन वो सूफी मनश आदमी थे, इसलिए उनकी दिलचस्पियां कानूनी बखेड़ों से ज्यादा किशन प्रसाद के दरबार में मुनक्किद होने वाले मुशायरों, कव्वालियों, मजहबी बहसों, मज़ारों, मंदिरों की ज़ियारत व यात्रा से वाबस्ता थीं। खामोश खामोश सी फिजा ने जिसमें तसव्वुफ, शायरी और मौसीकी के धीमे धीमे राग बसे हुए थे, भीम राव के चोट खाए दिल पर मरहम के फाहे का काम दिया और रे रे का नगमा मटोले की दर्द भरी लय को समोए धीरे धीरे उन सोहबतों के गहरे आहंग में रल मिल गया। भीमराव को मौसीकी से बड़ा लगाव सा हो गया। राघु आचार्य खुद बहुत अच्छा सितार बजाते थे। भीमराव की पतली पतली उंगलियां बड़ी जल्दी तारों की लर्जिश से आशना हो गईं और उन्होंने थोड़े ही अरसे में इतनी महारत हासिल कर ली कि राघु आचार्य ने अपना हाथी दांत का सितार उनके हवाले कर दिया। भीमराव ने बैठे बैठे एक लंबी सी जमाई ली और उनके सामने बूढ़े राघु आचार्य का मुशफ़िकाना चेहरा नुमाया हो गया। पटड़ी बदलने की खटखट के साथ उनकी आवाज साफ तौर पर सुनाई देने लगी। राग तारों से नहीं निकलते भीम, ये दिल की धड़कनों से पैदा होते हैं। गाड़ी की खटाखट में राघु आचार्य का ये फिक्रा बराबर गूंजता रहा और उन्हें याद आया कि उन्होंने बेकरार होकर राघु आचार्य को अपने दिल की धड़कनें गिन गिन कर सुना दी। राघु आचार्य चुपचाप सुनते रहे और फिर उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने कहा कि भीम, अगर दुख दिल के अंधेरे में बंद रहे तो अजाब बन जाता है, लिहाजा इसको रागनी के रस में घोल दो और ये दर्द भरी रागनी कंचा से भगवान तक जाने के लिए पुल बन जाएगी। और भीमराव ने कंचा से भगवान तक पहुंचने के लिए पुल बनाना शुरू कर दिया। वो मज़ारों पर गए, कव्वाली की महफिलों में शरीक हुए, यात्राओं में भजन गाए, साधुओं और पीरों की जूतियां सीधी की और उपनिषदों से लेकर इंजील और कुरान की सूरतों पर विचार किया और धीरे धीरे वो पुल बनता गया जिस पर चलकर वो कंचा से दूर और भगवान से करीब होते जा रहे थे। फासला तो उन्होंने काफी तय कर लिया था, लेकिन वो बड़े मकमसे में फंसे हुए थे क्योंकि ये सारा फासला उन्होंने उल्टे चलते हुए तय किया था। पुश्त उनकी भगवान की तरफ थी और रुख कंचा की तरफ। अपनी कोशिशों से वो अपना रुख जब फेर ना सके तो फिर उन्होंने भगवान पर ही ये जिम्मेदारी डाली कि जब वो चाहेगा कांधों से पकड़कर उनका रुख अपनी तरफ फेर लेगा। और शायद भगवान ने ही कुछ ऐसा चाहा और कुछ इस तरह हुआ कि वो शाह नूरुद्दीन के उर्स में शरीक हुए।
राघु आचार्य के साथ बीदर गए। आचार्य जी नजले की वजह से कुछ जल्द ही डाक बंगला लौट गए, लेकिन भीमराव बड़ी रात तक कव्वाली की महफिल में सर धुनते रहे और कव्वाल ने जब हारूनी की गजल बसद सामान रुसवाई सरे बाजार मी रक़सम उठाई तो वजद के आलम में भीमराव पर मदहोशी की कैफियत तारी हो गई और वो बड़ी देर बाद उठकर डाक बंगले की तरफ जाने लगे। शहर के दरवाजे से स्टेशन तक की सड़क सुनसान सी पड़ी थी और चांदनी में सुर्ख सड़क का एक एक जर्रा रोशन नजर आ रहा था। सड़क के मोड़ पर एक छोटा सा कलाल खाना था और अब भी बहुत से नशाबाज कलहड़ों से सेंधी के चुस्के लगाते बदचलन औरतों के साथ बैठे हुए थे। एक कंचनी कंटरी का एक फहिश गीत गा रही थी। सेंधी की बिसांत का एक भपका भीमराव के दिमाग पर चढ़ गया और उन्होंने गुलूबंद से अपनी नाक बंद कर ली और तेजी से आगे निकल गए। अभी वो इमली के पेड़ के नीचे पहुंचे थे कि दो औरतें, एक बूढ़ी और एक गालबंद जवान, किनारे से सड़क पर आ गईं। दोनों नशे में धुत मालूम होती थीं। बुढ़िया ने तेलुगु में कहा, जरा कुछ दान देते जाओ, हमारे पास भालकी जाने का किराया नहीं रहा। दूसरी औरत ने एक हिचकी सी ली और सेंधी की बदबू से भीमराव को मतली सी होने लगी। वो मिली जुली तेलुगु और कंट्री में किसी हमद चाउश को गालियां देने लगी कि वो बयाज में उनका पैसा छीनकर सेंधी पी रहा है और अब उनके पास भालकी तक के टिकट के पैसे नहीं हैं। भीमराव को चुप देखकर बूढ़ी बोली, दवा मुफ्त देने को जी नहीं मानता तो ये छोकरी तुम्हारे पैर दाब देगी, थोड़ी देर आराम करके चले जाना। भीमराव को यह सुनकर बड़ी कराहत हुई और उन्होंने चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ दे देने का फैसला किया। अभी वो अपनी अंटी टटोल रहे थे कि जवान औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई और जरा बेबाकी से उनके लटकते हुए गुलूबंद को थाम लिया और बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराने लगी। भीमराव ने देखा कि अच्छे भरे भरे जिस्म की औरत है जिसके चेहरे पर एक हवसनाक तमतमाहट मौजूद है। कदोकाल खूबसूरत तो मालूम देते हैं, लेकिन हरामकारी की वजह से मस्क हो चुके हैं। अगर गुनाह की ये कलूनस चेहरे पर ना होती तो शायद वो बड़ी खूबसूरत मालूम होती। खुली बेहयाई को इस तरह अपने सामने देखकर भीमराव सटपटा से गए। उधर उसके मुंह से सेंधी की भपके निकल रहे थे कि बदबू के मारे उनका दिमाग चकरा सा गया। जल्दी से उन्होंने 2 रुपये उसके हाथ पर रख दिए, लेकिन उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि औरत का हाथ रुपयों को लिए हुए नीचे लटक सा गया, जैसे उसे पैसे मिलने का एहसास तक ना हुआ। वो मुकाबिल से पड़ी हुई चांदनी में भीमराव को टिकटिकी लगाए देख रही थी। भीम रे, बेख्याली में उसकी जबान से निकला। इसी तरह घूरते हुए उसने एक हिचकी ली और गुलूबंद के दोनों पल्ले थाम कर उनके सीने पर सर रख दिया। भीमराव कुछ हैरान और कुछ गुस्से के साथ 2 कदम पीछे हट गए और औरत को परे धकेल दिया। औरत ने नीचे झुककर उनके पैर पकड़ लिए। भीम, तुझे माता की कसम मेरे मुंह पर एक ठोकर मार। सुनता है रे भीम, एक ठोकर रे।
माता रे माता, ये भीम है। बूढ़ी औरत ने बढ़कर नीचे गिरे हुए 2 रुपए चुपके से उठाकर चोली में उड़स लिए और तेलुगु में गालियां देते हुए उसको जबरदस्ती खींचकर खड़ा कर दिया। दीवानी हुई रे कंचा, रे कंचा। और जैसे भीमराव की आंखों के सामने कई एक तारे टूट गए। थोड़ी देर तक तो वो सुन ही ना सके कि बूढ़ी क्या बड़बड़ा रही है और दूसरी औरत क्या कुछ कहे जा रही है। फिर उन्होंने कंचा के दोनों हाथ पकड़कर उसे उठाया। कंचा, तू? नहीं नहीं, हे राघु, ये कंचा है। नहीं नहीं। उनकी उजली उजली आंखों में हैरत थी, मोहब्बत थी, नफरत थी, खुशी थी और दुख था। ये सब रंग एक निगाह में घुल मिल गए थे और कंचा इस निगाह की ताब ना लसकी और अपने हाथ छोड़ाकर भाग खड़ी हुई और कलाल खाने के अहाते में गायब हो गई। भीमराव न जाने कब तक बेहिस्सो हरकत खड़े अंधेरे को बेबसी से देखते रहे। फिर उनके लब लर्जे जैसे अंधेरे से कह रहे हों, तूने कंचा को भी निगल लिया। जबकि वहां अंधेरा नहीं था, चांदनी चिटकी हुई थी। न जाने कब उनके लरसते जिस्म ने हरकत की और बोझल कदमों से चलते वो डाक बंगला पहुंचे और बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गए। निखरी हुई चांदनी में मंजर बड़ा दिलकश और पुरस्कार सा नजर आ रहा था। एक तरफ दूर पुराने किले के ऊंचे ऊंचे बुर्ज सिया बादल की तरह दिखाई दे रहे थे और जरा सा हटकर बरीद शाही खानदान के मकबरे इतने नुमायां थे कि जमीन पर उनका साया तक नजर आ रहा था। और सीढ़ियों के बिल्कुल ही नीचे काफी गहरे नशेब में मीलों दूर तक एक मैदान फैला हुआ था, जिसमें खेतों के हाशिया, दरख्तों के झुंड, जगह जगह छोटी छोटी बस्तियां और कहीं कहीं दियों की टिमटिमाती हुई रोशनी झिलमिला रही थी। दरख्तों के झुंड पर से यकायक कोई परिंदा सीटी बजाता हुआ उड़ जाता और खुली चांदनी में बड़ बागलों का कोई झुंड अचानक किसी खेत पर उड़ता हुआ नजर आता। कहीं से कोई गीदड़ चीखता हुआ भागता और फिर काफी देर तक एक सुकूत सा छा जाता। खामोशी ही खामोशी थी, बाहर चारों तरफ भी और भीमराव की अपनी दुनिया में भी। खामोशी का भी एक राग होता है, धीमा धीमा सरसराता हुआ, जिसे कान नहीं सुन पाते, दिल सुन लेता है। भीमराव भी ऐसा ही एक राग सुन रहे थे, जो कभी खुले मैदान से उठता और उनके दिल में समा जाता और कभी उनके दिल से उठता और मैदान में फैल जाता। इसी झिलमिल में उन्होंने बहुत सी बातें सोची। कई मर्तबा उनके लब फड़के, कभी कभी सांस सीने में भर सा गया और फिर एक लंबी और गहरी सांस ली। इस खुले मैदान को और इस मैदान में झिलमिलाते हुए हुस्न और निखार को देखते देखते वो मस्त से हो गए। दूर मैदान के किनारे आखिरी रात का चांद ऐसे लटक रहा था जैसे वो नीचे गिरा जा रहा हो। उसकी रोशनी फीकी पड़ गई थी और फीकी पड़ती जा रही थी।
चांद क्यों फीका पड़ गया, और उन्हें अपने स्कूल का सबक याद आ गया कि चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं बल्कि वो सूरज की रोशनी है, और जैसे अंदर ही अंदर कोई गिरा जिसने उनकी रूह को जकड़ रखा था टूट सी गई। एक आह सी उनके मुंह से निकली, लेकिन ये इत्मीनान की आह थी, जैसे तलवे से कांटा निकल जाने पर कोई उफ करे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।